کہ حکومت بدلی سال ختم ہونے کو مگر مہنگائی مافیا تاحال آزاد۔ آج برائلر گوشت 29 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 591 روپے ہو گئی۔ آپ کو بتائیں کہ ہفتے میں مرغی کا گوشت 116 روپے کلو تک مہنگا ہوا۔ شہری بچوں کے لیے سستی پروٹین کی خریداری سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عبدالقادر۔ ضلع انتظامیہ مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ 70 سے زائد مجسٹریٹ کے لیے 1,40,000 اشیاء ضروریہ کی دکانوں کی چیکنگ ناممکن۔ رپورٹ کے مطابق گرام فروشی کم ہونے سے مہنگائی کا تناسب 100% اوپر گیا۔ ذرائع کے مطابق شہر میں 10,000 تنور، 400 میگا سٹورز کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ نہیں ہو رہی۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں اسامہ، چونکہ اب یہ قصہ پرینہ بن چکا ہے کہ شہریوں کو ریلیف کس طرح سے فراہم کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوششیں روزانہ نظر آ رہی ہیں اور کافی زیادہ پلگ ان بھی کیا گیا ہے، مگر ابھی بھی جو ہے 50% سے زائد لکوناز جو ہے وہ باقی ہیں۔ شہر میں گرام فروشی اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن تاحال جو ہے انتظامیہ کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سرکاری پیمانہ کامیاب نہیں ہو سک رہا۔ نئی اتھارٹیز بنائی جا رہی ہیں، مگر ابھی تک اتھارٹیز پر کام ہو رہا ہے، چونکہ ان کے لیے بھی ریونیو جنریشن کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو 70 سے زائد مسٹیٹس کی فوج در ظفر موج ہے جو روزانہ گرام فروشی پر کنٹرول کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، اور اپنی جو اس وقت جرمانوں کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، مقدمات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ملزمان گرفتار کرانے کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے، مگر گرام فروشی جو ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ شہر مہنگائی اور گرام فروشی کی زد میں جو شہری ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ 70 سے زائد مسٹیٹس جو ہے 1,48,000 اشیاء ضروریہ کی دکانیں ہیں لاہور شہر میں اس وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تندور ہیں وہ بھی ان کی بھی ہزاروں میں تعداد ہے، میگا سٹورز کی بھی ہزاروں میں تعداد ہے، جو کہ اس وقت گرام فروشی جہاں پر عام ہے اور وہاں پر عمران، یہ بتائیے قانون میں ایسا کیا حکم ہے جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ ایک مرتبہ پھر مقدمات سے چھوٹنے کے بعد دوبارہ سے گرام فروشی شروع کر دیتے ہیں؟ کیا کوئی ریگریس سزائیں دینے کے بارے میں حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیے جی، کوئی بھی قانون سے بڑھ کے نہیں ہے، قانون کے سارے تابع ہوتے ہیں، کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ صرف ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہوتی ہے۔ اگر مجسٹریٹ ایک مجسٹریٹ ہو اور اس کا علاقے میں پوری ریٹ قائم ہو اور گرام فروشی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے، وہ اس لیے کہ جب اس نے کہیں پہ بھی لینینسی دکھانی نہیں ہے، نرمی دکھانی نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ جو گرام فروشی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ لکوناز ہیں، کافی زیادہ پریشانی ہے جس میں گرام فروشی قدرے بہتر تو نہیں ہوئی، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، مگر مقدمات، جرمانے، ان سے جو ہے شہری جو ہے وہ پریشانی سے باہر نہیں آ رہے۔ جگہ جگہ جو ہے سبزی لینے جائیں تو وہ سبزی مہنگی ملتی ہے، اگر دالیں لینے جائیں وہ بھی مہنگی ملتی ہیں، ایون کہ گوشت اور دودھ اور دہی، جو کہ دودھ اور دہی روزانہ کی 1,000 روپے دودھ جو ہے روزانہ کی غذا ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ بھی مہنگا بک رہا ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں تمام جو صورتحال ہے جس میں اس وقت انتظامیہ اپنی طرف سے کوششیں کر رکھی ہیں، مگر اس وقت گرام فروشی نہ رک رہی ہے، نہ ذخیرہ اندوزی رک رہی ہے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے 2 ماہ بعد جو ہے رمضان آ رہا ہے تو اس کی تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے شہر میں جو ہے گرام فروشی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی کا تناسب بھی بڑھ جاتا ہے۔ مگر اس وقت جو مجسٹریٹس ہیں ان کی مانیٹرنگ کا مؤثر نظام 2024 میں ہیلتھ میں عوامی خدمت کے نئے ریکارڈ۔ نواز شریف کینسر ہاسپٹل، فیلڈ ہاسپٹل، چلڈرن ہارٹ سرجری کارڈ، میڈیسن ہوم ڈیلیوری منصوبہ۔ پنجاب ایئر ایمبولنس سروس کا باقاعدہ آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا۔ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹل سے تقریباً 68 لاکھ مریض مستفید ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کی صحت ترجیحات میں شامل وسائل کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے۔ لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب ایئر ایمبولنس سروس کا باقاعدہ آغاز کرنے والا پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا اور کلینک آن ویل اور فیلڈ ہاسپٹل سے تقریباً 68 لاکھ مریض مستفید ہونے کا ریکارڈ ہوا ہے، اور پنجاب بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز سے پوری ویکسین کا میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ مریم نواز شریف نے روایتی بی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو مریم ہیلتھ کلینک میں بدل دیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ پنجاب بھر میں 2800 سے زائد ہاسپٹلوں کی ری ویکسین کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پنجاب بھر کے دور دراز دیہی علاقوں میں فیلڈ ہاسپٹل کی بے مثال ترقی جاری ہے۔
फील्ड हॉस्पिटल से 9.5 लाख मरीज मुस्तफीद हुए और 7,000 एक्सरे, 1,35,000 लैब टेस्ट किए गए। फील्ड अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट एड और माँ बच्चे की सेहत की सहूलत, लाखों शहरों के गुंजान आबाद इलाकों के लिए क्लिनिक और व्हील से 67 लाख मरीज मुस्तफीद हुए हैं। इसी तरह क्लिनिक और व्हील सर्विसेज में डॉक्टर, LHP, वैक्सीनेशन स्टाफ और अल्ट्रासाउंड भी मुयसर है। और कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लाहौर में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर मोहम्मद नवाज शेख कैंसर हॉस्पिटल तेजी से तकमील की तरफ गामजन है। इसी तरह सरगोदा में अभी जो नवाज शेख इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील के करीब है। इसी तरह जिले अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरी करने का टारगेट स्पेशल पैकेजेस की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया है। और पंजाब के जिले अस्पतालों में कैथ लैब, कार्डियोलॉजी। आपका शुक्रिया हसन रजा। LDA की हाउसिंग स्कीमों में पार्क, स्कूल और मसाजिद की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कब्जा माफिया की निशानदही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन, सवाजार में सर्वे किया गया। अराजी वागुजार करवाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों में 380 प्लॉटों की फहरिस्त तैयार की गई है। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं, बताइए ज़ैन। में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से एक आला सतही इजलास की सदारत की गई, जिसमें ये अहकाम जारी किए गए कि लाहौर समेत पंजाब भर में तजावुज़ात और कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड क्रैकडाउन का आगाज किया जाए। तो इस सिलसिले में कार्रवाइयों का तो आगाज कर दिया गया है, लेकिन LDA की ही हाउसिंग स्कीमों में मुफादे अम्मा की अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जे किए जाने का इंकशाफ हुआ है। LDA की अपनी हाउसिंग सोसाइटियों में प्लान में जिनको पार्क, स्कूल और मसाजिद के लिए अराजी मुख्तस की गई थी, यहाँ पर घर और कमर्शियल दुकानें तमीर की गई हैं। LDA ने अवामी मुकामात से जो कब्जा वागुजार करवाने की बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है। LDA के शोबा हाउसिंग ने सरकारी सोसाइटी में मकबूज प्लॉटों की निशानदही कर दी है। इसमें सब्जाजार में 300 कनाल अराजी वागुजार करवाने के बाद मजीद 100 कनाल की निशानदही कर दी गई है। शोबा हाउसिंग 4 ने सब्जाजार नक्शे में इलाके को ग्रे एरिया डिक्लेयर कर दिया है। इसके अलावा सब्जाजार हाउसिंग स्कीम में ही गुजरगाहों पर घर तमीर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कब्जा माफिया की निशानदेही के लिए मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन और गुलशनावी का भी सर्वे किया गया है। मुतलका डायरेक्टर हाउसिंग की तरफ से जो सर्वे किया गया उसमें इन मज़कूरा हाउसिंग स्कीमों में 380 प्लॉटों की फहरिस्त DG/LDA को फराहम की गई है, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, जुबली टाउन और गुलशन रावी के इलाकों में 380 से ज्यादा प्लॉट हैं जिन पर कब्जा किया जा चुका है। इसके अलावा जोहर टाउन में सबसे ज्यादा कब्जा माफिया के प्लॉटों की निशानदेही की गई है, जिनकी तादाद 1000 से जायद फहरिस्त में बताई गई है। DG/LDA ने पुलिस की मदद से अराजी को वागुजार करवाने का हुक्म दे दिया है। आपका शुक्रिया ज़ैन। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर में आज भी बूंदाबांदी हो सकती है। लाहौर मोटरवे M2 बाबू साबू इंटरचेंज टोल प्लाजा और लाहौर से सियालकोट मोटरवे को धुंध में कमी के बाद खोल दिया गया है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं जो इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद हैं। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, शहर लाहौर में होने वाली बारिश की वजह से जो है आज भी शहर लाहौर के मौसम में जो सर्दी है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। अभी भी सर्द हवाएं जो है वो शहर लाहौर पर डेरे जमाए हुए हैं। आसमान पर भी हर जानिब बादलों के ही डेरे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दिन भर शहर का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 100% तक जा पहुँचा है, जिसकी वजह से महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले घंटों में जो है हल्की बूंदाबांदी की जो है वो पेशगोई कर दी गई है। और इस वक्त भी शहर लाहौर के चारों तरफ जो है सर्द हवाओं के डेरे हैं। ठिठुरती हुई सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है, जबकि यख हवाएं भी चल रही हैं और 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यह हवाएं चल रही हैं। और जो शहरी हैं वो खासे जो है सर्दी से ठिठुरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो है सूरज भी जो है अपनी किरणें बिखेरने की कोशिश तो करता है, लेकिन बादल इस कदर आसमान पर
ज़्यादा हैं। उफ़क़ पर बादलों का ऐसा राज है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो डेरा जमाए रखा है और सूरज की चलती हुई दिखाई नहीं देती। जबकि आइंदा आने वाले घंटों में बूंदाबांदी की भी जो है वो पेशगोई की है, जिसके बाद जो है शहर लाहौर में जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा देखा जाएगा, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी मतला तो ज़रूर साफ़ होगा, लेकिन यख हवाएं जैसे ही चलेंगी तो शहरियों को मज़ीद सर्दी का जो है वो सामना करने पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो खुश्क सर्दी है उसका ज़ोर जो है वो टूट चुका है। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से जो है वो तजावुज़ कर गया है। और इस वक्त जो शहर लाहौर है उसमें स्मॉग, धुंध और बादलों के डेरे दिखाई दे रहे हैं। और आइंदा आने वाले औकात में जो है अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि मतला जो है वो साफ़ हो जाए और स्मॉग की शिद्दत में भी जो है वो कमी वाक़या हो। जी, आपका शुक्रिया सामिया। 8 साल बाद हज़ारों डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर के इख्तियारात बहाल करने का फैसला। DTs को बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान। DT स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। पंजाब भर में DTs की तादाद 4560 और लाहौर में 113 है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की DTs को बहाल करने की हिदायत। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज की जानिब से 8 साल बाद डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स के इख्तियारात बहाल करने का फैसला किया है। DEs को बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान किया गया है। DE स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत फराहम करेंगे। 8 साल कबल 2017 में DEs के इख्तियारात वापस लिए गए थे। पंजाब भर में DEs की तादाद 4560 है और लाहौर में 113 है। DEs के इख्तियारात वापस लेकर इन स्कूलों में बतौर टीचर तैनात कर दिया गया था। अदालती अहकामात पर अब इन्हें दोबारा बहाल कर दिया गया है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम पंजाब भर के DEs को बहाल करने की इजाजत कर दी है। मज़कूरा DEs अब दोबारा स्कूलों में असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुल्लड़बाजी, खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर को हवालात में बंद किया जाएगा। IG पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक के मरबूत इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर समेत सूबा भर में 25,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। न्यू ईयर नाइट के हवाले से पंजाब पुलिस ने सख्त एक्शन के हवाले से इक़दाम करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हुल्लड़बाजी, खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर को हवालात में बंद किया जाएगा। IG पंजाब का न्यू ईयर नाइट पर ट्रैफिक के मरबूत इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म सामने आया है। लाहौर से में सुबह भर में 25,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। 25,000 से ज़ायद एहलकार और ऑफिसर्स जो हैं वो सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। हर साल देखा गया है कि हुल्लड़बाजी की जाती है, ख़वातीन से छेड़छाड़ के हवाले से कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन उस हवाले से अब पुलिस ने इक़दाम करने के अहकामात जारी कर दी हैं और IG पंजाब इस हवाले से एक्टिव नज़र आते हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं, बताइए मुदस्सिर। न्यू ईयर नाइट में पंजाब पुलिस का ने जो है वो उसको पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया है और IG पंजाब ने न्यू ईयर नाइट पर लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का जो है वो हुक्म दिया। सालों के अमल पर लाहौर समेत पंजाब भर में 25,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियाँ जो है वो अंजाम देंगे। 395 इंस्पेक्टर, 1125 सब इंस्पेक्टर, 2060 ASI, इसके अलावा 1310 हेड कांस्टेबल और 18,759 कांस्टेबल जो है वो दीगर एहलकार उसमें जो है ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लाहौर में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट पर नफरी तैनात की गई है। सूबाई दारुल-हुकूमत में 5,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटियां पर मअमूर होंगे। लाहौर में सूबा में CCTV कैमरों की मदद से तमाम सरगर्मियों को जो है वो न्यू ईयर नाइट की मॉनिटर भी किया जाएगा। IG पंजाब जस्टिस महानगर ने पुलिस को हाईलाइट रहने की हदायत जारी कर दी है और इस वाले से मुल्क दुश्मन अनासर पर बड़ी कड़ी नजर रखने की जो है IG पंजाब की तरफ से हदायत जारी की गई है। इस वाले से IG पंजाब आपका बहुत शुक्रिया।